हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक ड्यूक नेचर। आज के इस वीडियो में हम डिस्मेनोरिया और उसके होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and hit that bell icon to never miss the updates of upcoming videos. Let's start the video. Dysmenorrhea. Simple words में अगर कहें तो dysmenorrhea is painful menstruation. But as we know that slight pain is very common. So dysmenorrhea किसे कहेंगे? The definition is dysmenorrhea can be defined as the painful menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate day-to-day activities. मतलब पेन का जो मैग्नीट्यूड है इतना ज़्यादा है, सीवियर है, that the lady is unable to do her day-to-day activities. Now, what are the types of dysmenorrhea? तो डिस्मेनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसे स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसे कंजस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। द प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज़ व्हेन देयर इज़ नो अंडरलाइंग पेल्विक पैथोलॉजी, एंड दिस इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू एडोलेसेंट गर्ल्स. And secondary dysmenorrhea is when there is presence of pelvic pathology, any kind of pelvic pathology. These are the 2 types of dysmenorrhea. We'll discuss it one by one. Now, primary dysmenorrhea, and the definition is primary dysmenorrhea is the dysmenorrhea where there is no identifiable pelvic pathology. Any kind of पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है इस केस में। इंसिडेंस इसका 15 to 20% है, एंड इन एडोलेसेंट गर्ल्स. नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ द पेन? सी व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इज इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू एडोलेसेंट गर्ल्स एंड ऑलवेज टू ओव्यूलेटरी साइकिल्स. एंड जो पेन है डैट इज़ क्योर ऑफन फॉलोइंग प्रेगनेंसी एंड वजाइनल डिलीवरी. ये जो है एडोलेसेंट गर्ल्स में होता है, तो ये आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर वजाइनल डिलीवरी के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है, क्योर हो जाता है. द कॉज ऑफ पेन may be related to dysrhythmic uterine contraction and यूटेराइन हाइपोक्सिया. अब ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू प्राइमरी डिस्मेनोरिया. द फर्स्ट वन इज साइकोसोमैटिक फैक्टर. दैट मीन्स इज रिलेटेड टू मेंटल प्लेन. द फैक्टर इज टेंशन एंड एंजाइटी ड्यूरिंग adolescence. See, what happens is during adolescence, there is so much of hormonal changes going on, which she is unaware of. That causes tension and anxiety. That may be one factor of it. And the second one is low pain threshold perception. Now, the second factor is abnormal anatomical and functional aspect of myometrium. For example, abnormal anatomical aspect क्या हो सकता है? Like bicornuate uterus or septate uterus. This may lead to primary dysmenorrhea. Okay. Now, what are abnormal functional aspects? That is, there is uterine contraction but नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. मतलब यहाँ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट सर्विक्स का डायलेटेशन नहीं हो रहा है. टू मेक द फ्लो इजली दैट मे लीड टू पेन. ओके. वन अनदर कॉज
can be narrowing of the vaginal canal. Sorry, यहाँ पे ये little नहीं होगा. When there is narrowing of the vaginal canal, तो इस condition में भी pain हो सकता है. And the third functional cause can be hyperplasia of junctional zone. Now the third factor which leads to primary dysmenorrhea is the role of prostaglandins. तो prostaglandins क्या करता है? That synthesizes and releases PGF2 alpha छूट गया है, PGF2 alpha, which is a strong vasoconstrictor and that may lead to ischemia and ultimately causes pain. And the fourth factor is the role of vasopressin. Vasopressin causes uterine hyperactivity and dysrhythmic contraction. जो यूटरस का जो हाइपर एक्टिविटी एंड डिसरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू पेन. नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पेन? सो द नेचर इज spasmodic in nature. The pain is always confined to lower abdomen. It lasts for few hours to 24 hours, but not more than 48 hours. And the pain is hypogastric region. जो पेन होगा जो hypogastric region जो है वहाँ पे होगा यूजुअली. Now other symptoms क्या क्या हो सकते हैं पेन के साथ? तो there may be nausea, vomiting, diarrhea and headache. Now what is the management of primary dysmenorrhea? अगर कोई केस है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो मैनेजमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लाइक एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड ड्रग जो देंगे पेशेंट को if the case requires. So the expected management can be assurance, that is will motivate her, or and second one is to keep bowel empty, खाने में थोड़ा सा कम खाना खाएंगे. And the third is weight reduction, encourage activity. तो वेट रिडक्शन करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ में इंकरेज रखेंगे, अदर एक्टिविटीज़ में उसे इन्वॉल्व रखेंगे, इनकरेज करेंगे उसको इन्वॉल्व होने के लिए. और जो ड्रग मैनेजमेंट है विल डिस्कस इट लेटर इन द एंड. ना द प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो भी टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है. अब यहाँ से हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. So the dysmenorrhea occurring in presence of pelvic pathology is termed as secondary dysmenorrhea. तो जो पेन अगर किसी पेल्विक पैथोलॉजी होने की वजह से हो रहा है that can be termed the secondary dysmenorrhea. और यहाँ क्या होता है, there is increased blood congestion to the part. So इसीलिए इसको कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है. तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो कॉज है वो क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट कॉज इज इंक्रीजिंग टेंशन इन पेल्विक टिश्यू ड्यू टू प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन. कंडीशन नहीं, यहाँ पे कंजेशन होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए. सो द फर्स्ट कॉज कि यहाँ पे जो प्री मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस के पहले जो पेल्विक कंजेशन हो रहा है उसकी वजह से टेंशन टिश्यूज़ में बढ़ रहे हैं, दैट मे कॉजेस पेन. एंड द सेकेंड कॉज कैन बी इंक्रीज द वैस्कुलरिटी ऑफ पेल्विक ऑर्गन. नाउ द कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, दैट मीन्स कि जहाँ पहले बताया मैंने कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी. तो व्हाट काइंड ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी हो सकता है? दैट इज इंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस,
IUCD इन विट्रो, अगर यूट्रस में कोई इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो तो यूट्राइन फाइब्रोड के केस में हो सकता है, इंडोमेट्रियल पोलिप हो सकता है, एंड क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन के केस में भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। ना जो इसका इंसिडेंस है यूजली ऑकर्स इन 30s, राइट, एंड मोर ऑफन इन पैरस. Paras means the lady who have already delivered. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? दैट इज़ डल पेन इन बैक एंड फ्रंट विच इज़ 3 to 5 days prior to period, okay, and is relieved by flow. That means कि 3 से 4 दिन पीरियड आने के पहले पेन स्टार्ट होगा और जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा द पेन इज रिलीव्ड एंड देयर इज नो सिस्टेमिक डिस्कम्फोर्ट. सॉरी, फॉर दिस इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे? तो द फर्स्ट वन इज ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी एंड हिस्टेरोस्कोपी. ये सब करा के हम पता चलेगा ये कि किस टाइप का पेल्विक पैथोलॉजी है. सो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इन सीयर. नाउ विल डिस्कस होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ डिस्मेनोरिया. ओके, so some of the most commonly used homeopathic remedies for dysmenorrhea are Actia racemosa, Colophyllum, Pulsatilla nigricans, Colocynth, Belladonna, Melilotus alba, Natrum mure, Apis mellifera. सो इतने सारे ड्रग्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. नाउ मेनी अदर ड्रग्स कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, राइट. As we know, homeopathy works on the basis of totality of symptoms and individualization. Now we'll discuss some of the drugs from this list one by one. The first one is Actia racemosa. The first very symptom is spasmodic dysmenorrhea. That means कि Actia racemosa में जो है spasmodic type का पेन होगा and the pain is in lower abdomen. एंड जो एक्टिया रेसिमोसा का जो पेन होता है दैट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट. जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा वैसे ही पेन स्टार्ट होगा एंड परसिस्ट तब तक रहेगा जब तक फ्लो सीज ना कर जाए. गॉट इट? सो दिस वन इज मोस्ट मार्क्ड वन, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ द मेंसेस का कैरेक्टर क्या होता है? दैट इज़ irregular, exhausting, delayed and increase of mental symptoms जो है मेंसेस के टाइम पे वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा. नाउ rheumatic dysmenorrhea, that means dysmenorrhea in presence of rheumatic pains. As we all know that Actia racemosa is a very good remedy for rheumatic pains. और इसका एक और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है दैट इज़ मोर प्रोफ्यूज द फ्लो, ग्रेटर द सफरिंग. दैट वन, मतलब जितना ज़्यादा फ्लो है उतना ही ज़्यादा पेशेंट सफ़र करेगा. सो इन दोनों सिम्टम को मार्क कर लीजिएगा बिकॉज these are characteristic to this remedy. इसका aggravation जो है during menstruation as the flow begins and amelioration है warm से and open air से. Now the second drug is Pulsatilla. In Pulsatilla there is spasmodic dysmenorrhea at puberty. इसमें जो है pain is of severe nature and with great restlessness and tossing about.
पेशेंट इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा एंड एकदम से जो कहते हैं दर्द से छटपटाना, वैसा वाला कंडीशन पल्सेटिला में होता है. Now, there will be delayed menstruation in the case of pulsatilla, right? Or as we know that pulsatilla is thirstless, उसे प्यास नहीं लगती है. द पल्सटिला का जो वेरी कैरेक्टरिस्टिक एक सिम्टम जो दिया हुआ है बुक में, दैट इज़ फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबरिक एज एंड नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम. मतलब कि जो भी हेल्थ का इम्पेयरमेंट हुआ है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, और उसके बाद से वो पेशेंट ठीक नहीं है. मेंसेस इसके इरेगुलर होते हैं, लेट होते हैं, स्कैंटी दैट मीन्स कम, एंड इंटरमिटेंट फ्लो विथ इवनिंग टेंशन. इवनिंग में एग्रावेशन जो है इसका क्लोज रूम में है, इवनिंग के टाइम पे एट ट्विलाइट एंड ड्यूरिंग मेंसेस. एमेलिएशन होता है इसका ओपन एयर में, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, ठंडा चीज़ खाने या पीने से इसको आराम मिलता है. नाउ द थर्ड ड्रग टू बी डिस्कस इज क्लोरोफाइलम. इस केस में जो पेन होता है दैट इज इंटरमिटेंट, पैरोक्सिज्मल एंड स्पाज्मोडिक इन नेचर. पेशेंट जो होगा मेंटली फियरफुल एंड हिस्टेरिकल टाइप का होता है. क्लोरोफाइलम के पेशेंट में क्या होता है दैट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुअल फंक्शन इस्टेब्लिश होते हैं, देयर इज़ द सिम्टम्स ऑफ कोरिया, हिस्टेरिया एंड एपिलेप्सी. इसका जो एग्रावेशन होता है वो कोल्ड से होता है, ओपन एयर से होता है, एम्बुलेशन विथ रेस्ट एंड वार्मथ. एंड द फोर्थ ड्रग इज बेलाडोना. इस मेडिसिन में कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया वेल मार्क्ड है. अभी तक जितना भी मेडिसिन मैंने डिस्कस किया उसमें स्पाज्मोडिक टाइप का पेन होता है, लेकिन बेलाडोना में क्या है, कंजेस्टिव टाइप का डिस्मेनोरिया है. देयर इज ड्रैगिंग पेन अराउंड द लोइंस के अराउंड में ड्रैगिंग टाइप का पेन होगा. एंड देयर इज प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विच इज़ ब्राइट रेड इन कलर एंड यूटेरस इज सोर एंड इरिटेटेड. जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसका कैरेक्टर होता है ब्राइट रेड, एंड यूट्रस जो होता है सोर होता है एंड इरिटेटेड होता है. एंड बेलाडोना का जो पेन का की नोट है दैट इज सडन एंड वायलेंट वनसेट ऑफ द पेन. इसे एग्रावेशन होता है टच से, मोशन से एंड कोल्ड एयर से, एंड एमेलियरेशन होता है रस्ट से एंड इन वार्म रूम. सो आज का ये वीडियो यहीं एंड होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने जूनियर्स के साथ. And please do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to never miss the updates of upcoming videos. Thank you for watching this video.